নমস্কাৰ মই দীক্ষিত শৰ্মা আপোনালোক সকলোকে নেশ্যন এনিলৈ স্বাগতম জনাইছো আৰু এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাজনৈতিক বাতৰি দিব ওলাইছো দিল্লীৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পাঁচটা প্ৰশ্ন কৰিছে দিল্লীৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘলৈ পাঁচটাকৈ প্ৰশ্ন আজি দিল্লীৰ যন্তৰ মন্তৰত আৰএছএছৰ বিৰুদ্ধেও সৰব হ'ল কেজৰিৱাল সৰব হ'ল বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে কেজৰিৱাল সৰব হ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বিৰুদ্ধে আৰু পাঁচটাকৈ প্ৰশ্ন আৰএছএছ প্ৰধান মোহন ভাগৱতক কৰিলে বিজেপিৰ কাম কাজক লৈ এই পাঁচটা প্ৰশ্ন কেজৰিৱালে কৰিলে দিল্লীৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সত্যাগ্ৰহত তেওঁ আজি অংশ ল'লে দিল্লীৰ যন্তৰ মন্তৰত আৰু পাঁচটা প্ৰশ্ন কৰিলে ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘৰ মুৰব্বী মোহন ভাগৱতে কি প্ৰশ্ন কৰিলে প্ৰথমে আমি আপোনালোকক ফুল প্লেটৰ মাধ্যমেৰে দেখুৱাই লৈছো দিল্লীৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱাল আৰএছএছৰ বিৰুদ্ধে সৰব যন্তৰ মন্তৰৰ পৰা আৰএছএছক কৰিলে প্ৰশ্ন বিজেপিৰ সন্দৰ্ভত আৰএছএছ প্ৰধানক প্ৰশ্ন পাঁচটা প্ৰশ্ন কৰিলে কি প্ৰশ্ন কৰিলে প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল যি ধৰণে ইডি সিবিআই ভয় দেখুৱাই চৰকাৰ ভঙা হৈছে সেই পন্থাক আৰএছএছে সমৰ্থন কৰেনে দ্বিতীয় প্ৰশ্ন মোদীয়ে সকলো ভ্ৰষ্ট নেতাক বিজেপিলৈ আনিছে আৰএছএছে মোদীজীৰ এই কাৰ্যক সমৰ্থন কৰেনে নিৰ্বাচনৰ সময়ত জেপি নেতাই দিয়া মন্তব্যক আৰএছএছে অসন্তুষ্টি ব্যক্ত কৰেনে ৭৫ বছৰত অৱসৰ লোৱা নিয়ম মোদীজীৰ ওপৰত বলবৎ হ'বনে বিজেপি পথভ্ৰষ্ট নোহোৱাটো আৰএছএছৰ দায়িত্ব বিজেপিৰ বৰ্তমানৰ কাম কাজক বন্ধ কৰিবলৈ মোদীজীক আৰএছএছে ক'বনে এই পাঁচটা প্ৰশ্ন কৰিলে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে আৰএছএছক কি প্ৰশ্ন কৰিলে সেই প্ৰশ্নকেইটা পুনৰবাৰ মই আপোনালোকক জনাই দিব ওলাইছো ফুল প্লেটৰ মাধ্যমেৰে পাঁচটাকৈ প্ৰশ্ন সেই প্ৰশ্নকেইটা হৈছে যি ধৰণে ইডি সিবিআইৰ ভয় দেখুৱাই আন চৰকাৰসমূহক ভঙাৰ চেষ্টা কৰা হৈছে সেই পন্থাক আৰএছএছে সমৰ্থন কৰে নে নকৰে যি ভ্ৰষ্ট নেতাক বিজেপিলৈ আনিছে মোদীজীয়ে সেই পন্থাক সেই কাৰ্যক আৰএছএছে সমৰ্থন কৰে নে নকৰে তৃতীয়টো প্ৰশ্ন ইলেকশ্যনৰ সময়ত জেপি নেতাই যি মন্তব্য দিছিল সেই মন্তব্যক লৈ আৰএছএছ অসন্তুষ্টি ব্যক্ত কৰিবনে ৭৫ বছৰত বিজেপিত অৱসৰ লোৱা নিয়মক মোদীজীৰ ওপৰত বলবৎ হ'বনে নহয় আৰু বিজেপিক পথভ্ৰষ্ট নোহোৱাটো যিহেতু আৰএছএছৰ দায়িত্ব আৰু বৰ্তমান যি ধৰণৰ কাম কাজ কৰি আছে সেই কাম কাজ কৰিবলৈ কাম কাজক বন্ধ কৰিবলৈ আৰএছএছে বিজেপিক ক'ব নে নকয় এই পাঁচটা প্ৰশ্নৰে আক্ৰমণাত্মক হৈ অৰবিন্দ কেজৰিৱালে বিজেপি আৰএছএছক সমালোচনা কৰিছে এই মুহূৰ্তত সেই মন্তব্য আমাৰ হাতত আহি পৰিছে সেই মন্তব্য আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছো কি ক'লে আজি কেজৰিৱালে आरएसएस वाले कहते हैं हम राष्ट्रवादी हैं आरएसएस वाले कहते हैं हम देशभक्त हैं आज मैं पूरे सम्मान के साथ आरएसएस के प्रमुख हैं श्री मोहन भागवत जी मैं पूरे सम्मान के साथ मोहन भागवत जी से 5 प्रश्न पूछना चाहता हूं और आपका समर्थन चाहता हूं अगर मैं कोई गलत प्रश्न पूछूं तो बता देना और सही प्रश्न पूछूं तो मैं आपसे हाथ खड़ा करवा के पूछूंगा मेरा पहला प्रश्न है मोहन भागवत जी से जिस तरह मोदी जी देश भर में लालच देके या ईडी और सीबीआई की धमकी देके डरा के दूसरी पार्टी के नेताओं को तोड़ रहे हैं पार्टियां तोड़ रहे हैं सरकारें गिरा रहे हैं क्या ये देश के लिए सही है मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं क्या आप नहीं मानते कि ये भारतीय जनतंत्र के लिए हानिकारक है पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए मोहन भागवत जी से मेरा दूसरा प्रश्न है उनसे देश भर में सबसे भ्रष्टाचारी नेताओं को मोदी जी ने अपनी पार्टी में शामिल करवा लिया जिन नेताओं को कुछ दिन पहले मोदी जी ने खुद सबसे भ्रष्टाचारी बोला
जिन नेताओं को अमित शाह जी ने खुद भ्रष्टाचारी बोला, कुछ दिन के बाद उनको बीजेपी में शामिल करा लिया। मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, क्या इस प्रकार की राजनीति से आप सहमत हो? क्या आपने कभी ऐसी बीजेपी की कल्पना की थी? पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए मोहन भागवत जी से? मेरा तीसरा प्रश्न है मोहन भागवत जी से। बीजेपी आरएसएस की कोख से पैदा हुई है कि नहीं है? कहा जाता है ये देखना आरएसएस की जिम्मेदारी है कि बीजेपी पथभ्रष्ट ना हो। मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, क्या आप आज की बीजेपी के इन कदमों से सहमत हैं? क्या आपने कभी मोदी जी से ये सब ना करने के लिए बोला? मोहन भागवत जी बताएं कि क्या आपने मोदी जी को ये सब गलत हरकतें करने से रोका कभी? पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए? मेरा चौथा प्रश्न है मोहन भागवत जी से। जेपी नड्डा जी ने लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी को अब आरएसएस की जरूरत नहीं है। आरएसएस बीजेपी की मां समान है कि नहीं है? क्या बेटा इतना बड़ा हो गया कि मां को आंखें दिखाने लग गया? क्या बेटा इतना बड़ा हो गया कि आज मां को आंखें दिखाने लग गया? जिस बेटे को पाल पोस के बड़ा किया, जिस बेटे को प्रधानमंत्री बनाया, आज वो बेटा पलट के मां को अपनी आंखें दिखा रहा है। मातृतुल्य संस्था आरएसएस आज वो बेटा अपनी मातृतुल्य संस्था को आंखें दिखा रहा है। मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, जब नड्डा जी ने ये कहा तो आपके दिल पे क्या गुजरी, आप जरा बताइए इस देश को। क्या आपको दुख नहीं हुआ? मैं आरएसएस के हर कार्यकर्ता से पूछना चाहता हूं, जब नड्डा जी ने कहा कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, क्या आरएसएस के हर कार्यकर्ता को दुख नहीं हुआ? मेरा पांचवां प्रश्न मोहन भागवत जी से मैं कहना चाहता हूं, आप ही लोगों ने मिलकर कानून बनाया था कि 75 साल के होने पे कोई भी व्यक्ति रिटायर होगा। इस कानून के तहत आडवाणी जी को रिटायर कर दिया, मुरली मनोहर जी जैसे बड़े बड़े नेताओं को रिटायर कर दिया, बीसी खंडूरी जी को रिटायर कर दिया, कलराज मिश्र को रिटायर कर दिया, शांता कुमार को और पता नहीं कितने लोगों को रिटायर कर दिया। अब अमित शाह जी कह रहे हैं कि ये नियम मोदी जी पे लागू नहीं होगा। तो मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, क्या आप इससे सहमत हो कि जो नियम आडवाणी जी पे लागू हुआ वो मोदी जी पे लागू